السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا سے کچھ سوال ہوا ہے اور اس کا جواب جو ہے علی مرزا نے دیا ہے۔ اور یہ سوال کیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا پہلے آپ عاشق معاویہ رضی اللہ تھے، اور یہ جو ہے لائیو کالر کا اعتراض ہے۔ تو یہ جو ہے اس ویڈیو میں ان سے کافی ساری چیزیں پوچھی گئی ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے ساری باتیں رکھی ہیں کہ میں نے قرآن اور حدیث جب پڑھنا سٹارٹ کیا اور جس طریقے سے میں نے پڑھا، اس کے بعد جو بھی مجھے علم حاصل ہوئی اس کے حساب سے انہوں نے اپنی زندگی کا معاملہ جو ہے آخرت کے لیے جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے سوچا۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ پہلے جس طریقے سے میں اپنی زندگی کو جیتا تھا اور جس طریقے سے ابھی جی رہا ہوں اس پر انہوں نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کا جو معاملہ تھا پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے علی مرزا نے بتایا اور آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائے گی۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ انڈین کشمیر سے ہیں عادل بھائی؟ جی کشمیر، انڈین کشمیر سے۔ جی اپنا سوال کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کے پہلے جو ویڈیو میں آپ بات کر رہے تھے، آج جو آپ ویڈیو میں بات کرتے ہیں بہت ڈفرینس لگتی ہے۔ سوال جو آپ کا ہے وہ آپ کریں۔ وہی سوال میں آپ پہ آ رہا ہوں۔ جو آپ پہلے بات کرتے تھے کہ جو امیر معاویہ کی غلطی ہے یا بزرگان دین کی غلطی ہے، ان کی غلطیوں کو ہم کو ہائی لائٹ نہیں کرنی ہے، ہم کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ مگر پھر 5-6 سال کے بعد آپ نے دوسرا لائن اختیار کیا ہے کہ کوئی ہم دوسرا اپنی لائن نہیں اختیار کیا، کوئی دوسری لائن معاویہ نہیں کو تلوار پہ اٹھا لیتے۔ آپ نے بعد میں آپ نے یہی کہا تھا۔ ہاں پہلے مجھے، ہاں جی پہلے تو میں بریلوی تھا نا، تو بریلوی تھا، شرک بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی جب مجھے پتا چلا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے میں جواب دے رہا ہوں میرے بھائی، آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا، حوصلہ رکھیں سننے کا۔ آپ کا سوال سن لیا نا میں نے، جواب دے رہا ہوں نا۔ تو آپ اگر مجھے کوئی آگے کہتا ہے کہ آپ تو پہلے شرک کرتے تھے تو شرک کیوں چھوڑ دیا، تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس میں کون سا مسئلہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی پہلے آتش پرست تھے، پھر وہ کرسچن ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی کو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ پہلے آگ کی پوجا کیوں کرتے تھے۔ بھائی توبہ کر لی انہوں نے جب انہیں پتا چلا۔ جب مجھے پتا چلا کہ قرآن کی روح سے میں شرک کر رہا تھا، میں نے شرک چھوڑ دیا۔ پھر میں نے بخاری مسلم پڑھی، رفع الیدین شروع کیا، سنت کے مطابق رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت سنت کے مطابق نماز شروع کی۔ تو میرا سارا معاشرہ مجھے کہتا تھا آپ نے وہ قادیانیوں والا طریقہ کیوں چھوڑ دیا، یعنی قادیانی بھی حنفی ہے نا، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں تو اب سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوں۔ پھر میں نے بخاری مسلم مزید پڑھنی شروع کی، تو مجھے بنو امیہ کے بارے میں پتا چلا، ان کے بارے میں نبی الاسلام کے فرامین پتا چلے، انہوں نے جو امت کے ساتھ کیا مجھے پتا چلا۔ امام بخاری، امام مسلم ہمارے لیے کتابیں لکھ کے گئے تھے، تو اس معاملے میں جو میرا پہلے موقف تھا تو میں نے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے تو رجوع کر لیا۔ اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ انسان کا لرننگ پروسیس تو جاری رہتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قرآن و سنت کے کوئی خلاف بات ہے اس کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ جو چیز قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے اس کو اسی طریقے سے بیان کریں گے، اور اس کے اوپر جو پردہ ڈالنے والی بات ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن کی روح سے حرام ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 160 میں آیا ہے کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس کو حق بات پتہ چلی اور کسی نے اس سے پوچھ لیا، اس کے باوجود اس نے وہ بات چھپا لی، تو قیامت آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ تو جب یہ باتیں پتہ چلی تو ابھی بھی مستقبل میں جو اور باتیں بھی پتہ چلیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہماری تو خواہش ہے کہ ہم مرتے دم تک چیزوں کو سیکھتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ فائنل ہو گئی یہ چیز، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھیں،
अहादीस पढ़ें और आपको नई बात पता चले, आप हक बात को बयान करें और डंके की चोट पे करें, किसी की परवाह ना करें। ठीक हो गया? अपना दूसरा क्वेश्चन कर लें। दूसरा क्वेश्चन ये, आप जो कहते हैं ना नाम भाभी मुस्लिम इल्मी किताबी, ये भी तो एक फिरका बन गया है, फिर आपके जाने के बाद ये भी फिरका बन जाएगा। इल्मी किताबी हाँ। किस किताब में लिखा हुआ है इल्मी किताबी? हम मुस्लिम में, सीधा बोलना है मुस्लिम में, ना वहाबी जी ना जी इल्मी। मुस्लिम है, बिल्कुल। मेरी तो इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड है आदिल भाई, मेरी एक नहीं, मेरी दर्जनों वीडियो रिकॉर्ड है कि ये एक शेर है, ये कोई फिरके की अनाउंसमेंट नहीं है। जिस तरह नबी इस्लाम ने कहा अनन नबी ला कदिब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। अब कोई नबी इस्लाम पे ये इतराज नहीं कर सकता कि आप तो अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटा अपने आप को क्यों कह रहे हैं, आप तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। हो सकता है कि आज जैसे कोई फिलासफर होते तो वो ये कहते कि आप तो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे ही नहीं है, पोते हैं, ये क्यों कह रहे हैं आप? तो नबी इस्लाम स्लोगन के तौर पे पढ़ रहे थे, हम ये स्लोगन के तौर पे बात कर रहे हैं। और मैंने अपनी वीडियोस, दर्जनों वीडियोस में कहा है, देखें ये हिम्मत मेरे अंदर अल्लाह ने दी है मुझे कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड है कि इल्मी किताबी फिरका नहीं बनाना। ठीक है, मैंने इसके खिलाफ वीडियो चढ़ाई हुई है। इल्मी किताबी जब लोगों ने हमें कहा ना, तो मैंने अपनी जिंदगी में इसकी नफी कर दी। ये वो तौफीक है जो अशरफ थानवी को नहीं मिली कि वो अपनी जिंदगी में नफी करके जाए देवबंद फिरके की। अहमद बरेलवी को तौफीक नहीं मिली कि वो अपनी जिंदगी में बरेलवी फिरके की नफी करके जाए। लेकिन मैंने चूंकि फिरका लॉन्च नहीं किया था, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में नफी कर दी कि हम सिर्फ मुस्लिम हैं। और ये जो हम वेबसाइट का नाम भी ahlesunnatpak.com रखा हुआ है, तो हम अहले सुन्नत भी सिर्फ मनहज के तौर पर मानते हैं। अहले सुन्नत फिरके को हम हराम समझते हैं। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। अहले सुन्नत फिरका बनाना भी हराम है। इल्मी किताबी तो शाही कोई नहीं ना, अहले सुन्नत फिरका बनाना भी हराम है। अहले सुन्नत की सिर्फ फिक्र, सिर्फ जो मुहद्दिसीन की फिक्र थी उसकी बात होती है, फिरके के तौर पर नहीं। हम मुस्लिम हैं, कोई इल्मी किताबी नहीं, नाऊद बिल्ला। और मैं आपको बताऊं, हमारी वेबसाइट में इन्होंने शुरू में जब डिजाइनिंग की ना, तो इन्होंने वहां पर ना ऑप्शन दिया था कि आप इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं तो आप ये बताएं कि आपका फिरका पहले कौन सा था, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया और इल्मी किताबी इन्होंने डाल दिया था। ये मैं आपको आज से कोई 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो मैंने इन्हें इतना डांटा, मैंने कहा ये क्या, तुमने तो फिरका खुद ही बना दिया। तो फौरन खत्म करवाया, उसी वक्त खत्म करवाया। और मैंने अपने इंटरव्यू में भी इसे रिकॉर्ड करा दिया है। मेरे तमाम स्टूडेंट्स मेरा इंटरव्यू देख चुके हैं, आप भी देख लें, मजलिस 50 इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसमें मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये मुझे तौफीक दी उस इखलास के बदले में, क्योंकि मैंने कोई फिरका नहीं बनाना था, चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया। जितने फिरकों के बड़े हैं ना, वो ये सारे काम अपनी जिंदगी में करके जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि फिरकों की एक बुराई भी मेरे अंदर मौजूद नहीं है, और मेरी एक अच्छाई किसी फिरके के अंदर मौजूद नहीं है। मेरी कोई एक अच्छाई किसी फिरके के बुजुर्ग में मौजूद नहीं है, और फिरकों के बुजुर्गों की एक बुराई मेरे अंदर मौजूद नहीं। अल्लाह के फजल से मैंने कोई किताबें लिख के एक दूसरे को काफिर नहीं कहा। मैंने कहा सब मुसलमान हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ेंगे, इनको चंदे देंगे, अपनी मस्जिद लादा नहीं बनाएंगे, चंदा बुक लादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक शेर था, शेर के तौर पर था, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अगर ये अनाउंसमेंट होती तो मैं इसे ऑन कर रहा होता ना, मैं कहता, जिस तरह आपने पहला सवाल किया कि आपने पहले ये कहते थे बाद में कहा, तो मैंने देखे ऑन किया उसे कि बिल्कुल ऐसे ही था। पहले मैं शिरक करता था, फिर छोड़ दिया। पहले मुझे नहीं पता था कि बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका ये लिखा है, फिर मैंने जब पढ़ी तो उसके मुताबिक शुरू कर ली। मैं मानता हूं कि पहले मैं गलत था। इसी तरीके से मुझे पता चला कि बनु उमैया ने इस उम्मत के साथ क्या किया, ये भी बुखारी मुस्लिम में लिखा है, तो मैंने बनु उमैया के हवाले से अगर कहीं पे कोई इस तरह की बात की थी कि हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, तो मैंने अल्लाह से माफी मांगी कि भाई क्यों खामोशी, मैं अपने नबी की जुबान को तो बंद नहीं कर सकता। मेरे नबी जो फरमाएंगे मेरे लिए बरहक है, मैं बिल्कुल खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। मैं अपने नबी की बात उसी तरीके से आगे पहुंचाऊंगा कि नबी इस्लाम ने ये फरमाया, इस मौके पे आपने ये फरमाया, आपने हजरत अम्मार इब्न यासिर के बारे में ये फरमाया, आपने हजरत अली के बारे में ये फरमाया, ये पेश गोइयां आपने की। मैं एक एक बात अपने नबी की बताऊंगा। तो इंसान का लर्निंग प्रोसेस रहता है। लेकिन ये जो इल्मी किताबी वाला मामला है, ये शेर था पहले दिन से और अभी तक। इसी तरीके से मेरा एक और शेर भी इन्होंने बिगाड़ा। हालांकि पहली दफा जब मैंने वो शेर बयान किया था, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। ये जिंदगी में जब मैंने पहली दफा शेर के तौर पर बयान किया ना, वो मजलिस 100 थी। उसके स्टार्ट में मैंने कहा कि खुदा न खास्ता कोई ये ना समझे कि मैं ये कहता हूं कि इन फिरकों वालों का खुदा कोई और है। मैंने कहा ये बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सबका एक ही खुदा है। फिर मैंने कहा हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो,
ज्यूज हों, उनका भी एक ही खुदा है, खुदा सबका एक है। लेकिन ये जो मैं शेर बोल रहा हूं कि किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, इसका मतलब यह है कि गोया के, ये लिटरेचर की जुबान में है, शायरी इसी तरीके से होती है, गोया के कि किसी और ही खुदा को मान रहे हैं, क्योंकि किताबों सुन्नत में तो खुदा की जो डेफिनेशन आई है वो इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो शिर्क कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त भी क्लियर किया था कि इसको वो माना ना ले, और ये मजबूरी होती है लिंग्विस्टिक की। इस तरह की तो चीजें कुरान में भी मौजूद है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है कि अल्लाह ताला के तो इल्म में कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसे अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाया हो, क्योंकि कुफार कहते थे ना कि अल्लाह ने अपने नायब बनाए हुए हैं। अल्लाह ने कहा हमारे इल्म में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अब हम अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि या अल्लाह ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो आपके इल्म में ना हो, तो फिर अल्लाह ताला आपको ये बताएंगे कि मैं ये नहीं कह रहा था कि मेरे इल्म में नहीं है, मुराद ये कि चूंकि मैं नहीं किसी इस तरह की हस्ती को जानता, इसका मतलब है कि वो हस्ती कायनात में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपसे पूछ के कुरान नाजिल होता ना आज की जुबान में, तो फिर कुरान की आयत इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, वो ऐसे होनी चाहिए थी कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी हस्ती नहीं बनाई जो उसका नायब हो। लेकिन अल्लाह ने ऐसे बात नहीं की, अल्लाह ने कहा हमारे इल्म में तो जमीन और आसमान में कोई ऐसी चीज नहीं है। आपको इस जुमले को पकड़ लें, ये क्या जी अल्लाह के इल्म में, अल्लाह जी हर चीज आपके इल्म में है। और भाई लिटरेचर में इसी तरीके से बात होती है, ठीक है, और ये बात अहले इल्म को पता होती है। इस तरह की कई मिसालें कुरान में हदीस में मौजूद है। वो लिटरेचर में उनको पकड़ना नहीं होता, उसकी थीम को पकड़ना होता है कि ये थीम क्या बयान हो रही है। जिस तरह नबी इस्लाम ने कहा कि मैंने बनु मरवान बनु मैया के बंदरों को अपने मिंबर पे देखा है। अब कोई नबी इस्लाम को कहे कि भी उमर बिन अब्दुल अजीज भी बनु मरवान से था, आपने उमर बिन अब्दुल अजीज को बंदर कह दिया, तो रसूलुल्लाह कहेंगे मैंने उसको नहीं बंदर कहा, मैंने उमूमी बात की है। लेकिन आप फिर बात पकड़े नहीं, आपने तो कहा बनु मैया के बंदर, बनु मरवान के बंदर, तो बनु मरवान का तो मरवान बिन हकम का पोता है उमर बिन अब्दुल अजीज, क्योंकि उसका पूरा नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हकम। तो आपने तो ये नहीं कहा कि एक्सक्लूडिंग उमर बिन अब्दुल अजीज, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। तो फिर आपको अरबी वाले बताएंगे कि उमूमी बात की जाती है जब, तो उसमें एक्सेप्शन को निकाल दिया जाता है, उसके लिए बयान करना जरूरी नहीं होता। बनु उमैया के बंदर में उमर बिन अब्दुल अजीज शामिल नहीं, अगरचे वो भी बनु उमैया से हैं, बनु मरवान से हैं, लेकिन वो शामिल नहीं। इसी तरीके से जब हम बनु उमैया को कंडेम करते हैं तो नऊज़ बिल्लाह हम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला या सैयदा उम्मे हबीबा जो हमारी माँ है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको नहीं हम उसमें शामिल कर रहे होते। नऊज़ बिल्लाह, हमारी तो वो माँ है जिसने अपने बाप अबू सुफियान की डांट खाई हुई है इस्लाम कबूल करने की वजह से। बाद में ये लोग मुसलमान होकर उसी रिश्ते को अवेल करते हैं, हालांकि हमारी माँ ने उस वक्त ये इस्लाम कबूल किया था कि जब उसे इन्हीं रिश्तेदारों से डांट खानी पड़ी थी इस्लाम कबूल करने पे। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप बाद में इस्लाम कबूल करके तो उस रिश्ते की धौंस लगाना शुरू कर दें जो रिश्ता पहले से हुआ है। वो तो दिलेरी तो उम्मे हबीबा की है। उम्मे हबीबा के पीछे ना तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को छुपाया जा सकता है, ना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला को। रहा उनकी साबियत का मामला, वो इतराम अपनी जगह, लेकिन जो फजीलत उनकी नहीं है वो धौंस से नहीं बनाई जा सकती, वो फजीलत उम्मे हबीबा की है। ठीक है जी, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन।